ایک بیوقوف بندے کی بات کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں سمجھیں۔ اندھا کیا جانے بسنت بہار۔ بتایا تو ہے ایسی کوئی بات نہیں، بس اسے چلتا کرو، مجھے کفت ہو رہی ہے۔ اتنا بد شکل بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یقین مانو تم نے مسکان سے اتنا بڑا انتظام لیا ہے کہ دل خوش ہو گیا۔ فریحہ کے دل میں چھپی خفگی بدنما الفاظ کی شکل دھار کر باہر آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم چائے تو پلا دیں۔ ایسے چلتا کرنا بد تہذیبی ہوگی۔ اسے کیا پتا تہذیب کیا ہوتی ہے۔ فریحہ کا غصہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کول ڈاؤن جان، بس چائے پلا کر اسے رخصت کرتا ہوں۔ فریحہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ دانیال ان کی انگریزی میں ہونے والی گفتگو کے دوران لاتعلقی سے دائیں بائیں دیکھتا رہا۔ اسے کوئی علم نہیں تھا کہ ساری گفتگو اس کے متعلق ہو رہی ہے۔ پہلی بار فریحہ کو دیکھنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات فریحہ کو اور زیادہ تاؤ دلا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے شمع محفل رہی تھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے ایک گئے گزرے جوان کا اسے یوں نظر انداز کرنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جتنی دیر بیٹھا رہے اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، اور جب وہ چلا جائے تو اس کے ہجر میں آہیں بھرتا رہے، مگر وہ گنوا جانے کن خیالوں میں مگن تھا۔ حماد نے بیرے کو بلا کر چائے اور کچھ کھانے کے لیے لانے کا بتایا۔ فریحہ سے دانیال کی لا تعلقی برداشت نہ ہوئی اور وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے بولی، ویسے محترم، آپ کب مسکان صاحبہ کو شربت دیدار سے نوازیں گے؟ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ واضح تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں میڈم، جب آپ کہیں میں اس سے مل لوں گا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے بھی اس نے فریحہ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ یہ بات فریحہ کو مزید سلگا گئی۔ اچھا دانیال میاں، یہ بات یاد رکھنا، اپنی شادی کی خبر کا تم نے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا۔ تمہاری ہونے والی دلہن بہت حیا والی ہے اور دوسری شادی کی خبر کو حد الوسع راز میں رکھنے کی خواہش مند ہے۔ اسی وجہ سے شادی کے بعد تمہیں اس کے مکان میں شفٹ ہونا پڑے گا، اور یہ خبر تمہاری ماں کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے۔ دانیال جلدی سے بولا، ٹھیک ہے جناب، مجھے آپ کی سب شرائط قبول ہیں، اور اگر بعد میں وہ پسند نہ آئی پھر۔ فریحہ خامخواہ اسے چھیڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ دانیال لجاجت سے بولا، میڈم، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فریحہ نخوت سے بولی، تمہاری شادی مجھ سے نہیں مسکان سے ہو رہی ہے مسٹر۔ مجھے تو یقیناً پھانسی کے بدلے بھی تم سے نکاح کی آفر ہو تو میں یہ خوشی پھانسی پر لٹکنا قبول کر لوں گی۔ خوت، میڈم، کالا آدمی اتنا برا لگتا ہے آپ کو تو پھر مجھے شادی کی آفر کیوں کی؟ یقیناً دانیال کو اس کی بات سے بہت اذیت ہوئی تھی۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ فریحہ نے اس کی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ اسے تو میں شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، اسٹیل مل میں مزدوری کر کے، ہے نا؟ فریحہ اسے شرمندہ کرنے پر تلی تھی۔ میڈم، دولت کے بل پر ہی سکون و آرام نہیں ملتا۔ شوہر جب بیوی کے ناز اٹھاتا رہے، اس کا وفادار رہے، اسے سر آنکھوں پر بٹھائے، اس کی ہر خواہش کو حکم سمجھے، اس کے علاوہ کیا چاہیے ایک لڑکی کو؟ کم از کم اتنی شکل و صورت تو ہو شوہر کی کہ وہ اسے آنکھ بھر کے دیکھ ہی سکے۔ فریحہ نے واشگاف الفاظ میں اس کا مذاق اڑایا۔ فریحہ کی بات دانیال کو تھیٹر کی طرح لگی تھی، مگر وہ خاموش نہ ہوا۔ صورت تو اللہ نے دی ہے میڈم، اور اسے بہتر بنانا میرے بس سے باہر ہے۔ البتہ اگر اسے میرے رویے سے کوئی گلا ہو تو جو چاہے سزا دینا۔ فری کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حماد نے اسے جھڑکا۔ دانیال اس کی ضرورت تھا اور وہ اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، ہے نا دانیال صاحب؟ فریحہ کو بھی اپنی زیادتی کا احساس ہوا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے ایک سادہ دل بندے پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ جو شخص خود اپنی شکل و صورت کی بے رونقی سے واقف ہو، اسے بار بار یہ چرکے لگانا ظلم ہی تو تھا۔ میڈم، جانتا ہوں کہ میں بدصورت ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا، اور اس لحاظ سے الحمدللہ میں دعویز کر سکتا ہوں میرا اندر باہر سے اچھا ہے۔ گویا تم ہمیں تانا دینا چاہتے ہو کہ ہم اندر سے صاف نہیں۔ فریحہ دوبارہ تپ گئی۔ نہیں میڈم، آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ آپ کی بدولت مجھے اتنا عالیز رشتہ مل رہا ہے، میں آپ کے بارے میں اتنا گھٹیا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ دانیال کے لہجے میں چھلکتا خلوص فریحہ کو پریشان کر گیا تھا۔ اسی وقت بیرے نے چائے اور کھانے کے لوازمات اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ چھوڑیں دانیال میاں، چائے پئیں۔ حماد نے موضوع بدلا۔ فریحہ کا رویہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ ایک کالے کلوٹے شخص کو اپنے حسن سے متاثر کر کے جانے وہ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی۔
दानियाल ने अकेला कप देखकर पूछा, आपने नहीं पीनी? हम पी चुके हैं। हमाद से पहले फरीहा ने जवाब दिया। दानियाल सर झुकाते हुए खाने के लवाजमात की तरफ मुतवज्जे हो गया। हमाद अंग्रेजी में फरीहा से मुखातिब हुआ। फ्री, मैंने तुम्हें कहा है कि एक बेज़ौक बंदे से तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। गधे के नज़दीक गुलाब के फूल की क्या अहमियत, मेंढक को स्वरसंगीत की क्या पहचान, भंगी का खुशबू से क्या वास्ता। तुम सुबह से भैंस के आगे बैन बजाने की तगदो में हो। कुछ होश के नाखुन लो। ओके ओके, फरीहा कता कलामी करते हुए बोली। बराह मेहरबानी अब इस मौजू को बदली करो। अच्छा ये बताओ मेरा इंतखाब कैसा है? बस ठीक ही है। क्या मतलब? पहले तुम कह रही थी लाजवाब इंतखाब है और अब बस ठीक ही है। जनाब, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। चाय का कप खाली करते हुए दानियाल ने इजाज़त तलब की। हाँ दानियाल मियाँ, बस 2-2.5 महीने की बात है, फिर मैं खुद तुमसे राब्ता कर लूँगा। हमाद ने मुसाफे के लिए इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। इससे मुसाफा करके दानियाल ने फरीहा को कहा, मैडम, अगर मेरे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल गई हो तो मुआफ़ करना। इन पर गुनवार हों, गुफ्तगू के आदाब से वाकिफ नहीं। मगर फरीहा ने उसे जवाब देने के बजाय हम्माद को मुखातिब हुई। जान, हमें भी चलना चाहिए। ठीक है दानियाल, तुम जाओ। हम्माद के कहने पर वो सलाम कहता हुआ रुखसत हो गया। पड़े फिर वही बेवकूफ़ी। शट अप यार, फरीहा नागवारी से बोली। मुझे एक 3rd क्लास बंदे के मुंह नहीं लगना। अच्छा दफा करो, वैसे भी इसे यहाँ बुलाना मेरी गलती थी। आओ चलते हैं। और फरीहा खामोशी से खड़ी हो गई। वो दानियाल के खुरदरे रवैये को फरामोश नहीं कर पा रही थी। इतना बेज़ौक और गुनवार बंदा उससे पहले उसकी निगाहों से नहीं गुजरा था, उसके बावजूद वो उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। मुस्कान के लिए इद्दत के दिन गुजारना बहुत मुश्किल मरहला साबित हुआ था। हम्माद उसका महबूब था। घर में होने के बावजूद इससे बहुत दूर के मुलाकात तो दरकिनार बातचीत भी नहीं हो पाती थी। गो उसमें सारा अमल दखल खुद इसकी मजहबी सोच का था। वो हम्माद के करीब जाने से डरती थी कि वो दोनों किसी गुनाह का इर्तिकाब न कर बैठें। जो शख्स चंद दिन पहले तक उसका शौहर रह चुका था, उसके पास तन्हाई में जाना गलत काम को दावत देने के मुतरादिफ था। इद्दत के बाद आने वाले लम्हात मजीद इम्तिहान लेने वाले थे। किसी दूसरे मर्द की बीवी बनकर रहना जिससे वो वाकिफ ही नहीं थी, एक इम्तिहान ही तो था। जाने उसका मिजाज, आदात और रवैया कैसा होगा। औरत जितनी भी अमीर कबीर हो, शौहर के रहमो करम ही पर होती है। इस दवाची जिंदगी के तकरीबन हर मरहले में शौहर की हुक्मरानी होती है। आज की जदीद औरत मर्द की हम सिरी का जितना भी दावा करे, अहले खरत जानते हैं कि इस दावे की हकीकत नरी खुशगुमानी ही है। फिर इस निकाह का उसके भाइयों को पता चल जाता तो एक अलहदा मसला खड़ा हो जाता। वो लाजमन इस फेल की मजम्मत करते। ये भी मुमकिन था कि हमेशा के लिए कता ताल्लुक कर लेते। हम्माद की बात मानकर उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का सबूत दिया था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। अब वो इनकार कर देती तब भी हम्माद की दोबारा बीवी बनने के लिए उसे दूसरा निकाह लाजमन करना पड़ता। फिर हम्माद की नाराज़ी एक अलहदा मसला था। इन परगंदा सोचों में काबिले इत्मीनान बात सिर्फ इतनी थी कि ये सारी कुर्बानी वो अपने महबूब शौहर के लिए दे रही थी। वो सरतापा एक मशरिकी औरत थी। शादी के बाद इसे हम्माद के रवैये में पहले वाली गर्मजोशी और मोहब्बत मफकूद नजर आई थी, मगर अब वो इसका शौहर और सर का ताज था। यूं भी इसके नज़दीक शायद मोहब्बत होती ही यही है। उसका ख्याल था जब मर्द औरत को हासिल कर लेता है फिर उसमें पहले वाले जज्बे उनका हो जाते हैं। मोहब्बत की हकीकत और चाहे जाने के जज्बात से आरी न सही न वाकिफ ज़रूर थी। हम्माद ने 1-2 दफ़ा शादी के मौजू पर तबादला ख्याल करने की कोशिश की, मगर इसकी बेइतनाई देखकर खामोश हो रहा था। अलबत्ता इसने मुस्कान से एक छोटा सा मकान खरीदने के लिए रकम ज़रूर मांगी थी, जहां मुस्कान ने अपने दूसरे शौहर के साथ वक्त गुजारना था। इसने इतनी रकम का एक चेक बगैर किसी बहस के इसके हवाले कर दिया था। इसने एक सरसरी नज़र अपने दूसरे शौहर की तस्वीर पर डाली थी। उसके अंदाजे के मुताबिक वो बदसूरत शख्स था। इस बात ने इसके दिल में ये इत्मीनान ज़रूर पैदा कर दिया था कि हम्माद इसे खोना नहीं चाहता और सचमुच उसे एक बच्चे की ख्वाहिश है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। आखिर वो दिन भी आ गया जब उसकी इद्दत पूरी हो गई। ना चाहते हुए भी उसे ये बात हम्माद को बतानी पड़ी, जो उस दिन के इंतज़ार में घड़ियां गिन रहा था। शादी की खुशखबरी इसे हम्माद ने फ़ोन पर सुनाई थी। दानियाल को लगा जैसे वो हवाओं में उड़ रहा हो। हम्माद कह रहा था, दानियाल मियां निकाह
निहायत सादगी से पढ़ाया जाएगा और ये रस्म तुम्हारी होने वाली बीवी के घर में अदा होगी। रुखसती वगैरह की रस्मों की ज़रूरत इसलिए भी पेश नहीं आएगी कि दुल्हन ने इस घर ही में रहना है। ठीक है भाईजान, जैसे आपकी मर्जी। दानियाल की समझ में नहीं आ रहा था कि किस जबान से इस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करे। और हाँ, कपड़ों वगैरह की फिक्र में न पड़ जाना, बल्कि यूं करो, इस वक्त तुम कहाँ हो? स्टील मिल में। ऐसा करो, बाहर आओ, मैं तुम्हें वहां से पक कर लेता हूँ, फिर सारी तफसीलात तय कर लेंगे। दानियाल मुस्तैदी से बोला, ठीक है बिया। हम्माद ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। दानियाल ने जल्दी से नहाकर वहीं लिबास बदली किया और बाहर निकल आया। इसे ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा, जल्द ही हम्माद उसे लेने पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वो रेस्तौरान में आमने सामने बैठे थे। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मियाँ खुश तो होता हो, कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गई। क्या बात करते हो? हम्माद भैया वो शर्मा गया था। मैं एक एक मिनट गिन कर गुजार रहा हूँ, आज 2 महीने 25 दिन हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, हम्माद ने कहकहा लगाया। भी मान गई। इसको हंसते देखकर दानियाल ने नादिम होकर सर झुका लिया था। अच्छा ये बताओ, क्या ये मुमकिन है कि तुम अपनी अम्मी जान को वहीं पुराने घर में रहने दो? दानियाल के चेहरे पर करब के आसार नमूदार हुए। उसे लगा दुल्हन उससे फिर छीन ली जाएगी। चंद लम्हे गहरी सोच में डूबे रहने के बाद इसने बेबसी से सर हिलाया। हम्माद भाई, ये नामुमकिन है। माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यकीन करो, उसकी ज़ात से मेरी बीवी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ओके ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम माँ को भी साथ ले आना, मगर उसे अच्छी तरह समझा देना कि इस शादी के बारे जानने वालों में ढंढोरा न पीटती रहे। ये ना हो शादी के अगले दिन तुम्हारे अजीज़ों का तांता बंध जाए। याद रखना, ऐसी किसी भी सूरत में मुस्कान उन सबको मिलने से इनकार कर देगी, इसमें सरासर तुम्हारी अपनी सबकी होगी। वो शादी को जाहिर करने के हक में नहीं है। अलबत्ता शादी के 4-5 माह बाद आहिस्ता आहिस्ता सबको बता देना, उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। उससे पहले ऐसा सोचना भी मत। हम्माद भाई, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दानियाल के बदन में गोया दोबारा जान पड़ गई थी। खाली कप के नीचे एक दरमियानी मालियत का नोट रखकर हम्माद खड़ा हो गया। चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग? उसके लहजे में हैरानी थी, मगर हम्माद इसकी बात का जवाब दिए बगैर चल पड़ा था। वो भी उसकी बात न समझने के बावजूद सर हिलाता हुआ उसके पीछे हो लिया। हम्माद ने कार एक मशहूर शॉपिंग प्लाजा की पार्किंग में रोकी और दानियाल को हमराह लिए अंदर की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने दानियाल के लिए 3 3-पीस सूट, जूतों के 2 जोड़े, खुशबू और इसी तरह की मज़ीद ज़रूरत की आशिया खरीदें। उसके बाद ज्वेलरी शॉप पर जाकर मुस्कान को मुंह दिखाई में देने के लिए एक कीमती लॉकेट खरीदा। दानियाल किसी मुलाजिम की तरह वो सामान उठाए उसके पीछे पीछे चल रहा था। ज़रूरत की तमाम आशिया खरीदने के बाद वो पार्किंग में आए। तमाम सामान कार की पिछली नशिस्तों पर रखकर वो आगे बैठ गए। कार रोड पर लाकर वो दानियाल को मुखातिब हुआ। दानियाल मियाँ, ये लॉकेट तुमने दुल्हन को मुंह दिखाई में देना होगा। बाकी सूट वगैरह तुम्हारे लिए हैं। ये तमाम सामान अभी तुम्हारे नए घर लेकर जा रहे हैं, जहां तुमने कल सुबह 11 बजे तक पहुंच जाना है। तुम्हारे तैयार होने तक मैं निकाह खां को बुलवा लूंगा। मौलवी साहब, 2 गवाह, मैं तुम्हारी अम्मी जान, और बस इससे ज्यादा रश की जरूरत नहीं। दानियाल ने इस बात में सर हिला दिया। उसके लिए ये सब सपने की बातें थीं। दुल्हन के साथ नया घर भी मिल रहा था और फिर सब खर्चा भी दुल्हन वाले कर रहे थे। यहाँ तक कि इसका लिबास भी उन्होंने खरीदा था। मतलूबा मकान के सामने जाकर हम्माद ने कार रोकी। पुख्ता ईंटों से बिना छोटा सा मकान दानियाल को बहुत पसंद आया। 4 कमरे, किचन, बाथरूम और फिर उसके अपने कमरे में एक मुल्हिका बाथरूम। कमरों के आगे बिना मेहराबी बरामदा, छोटा सा सहन, सामने की दीवार के साथ बनी 2 क्यारियां जिनमें मुख्तलिफ किस्म के फूल भी लगे हुए थे। बरामदे में भी फूलों के चंद गमले रखे थे। यहाँ तक कि कार खड़ी करने के लिए एक गैराज भी बना हुआ था। ऐसा घर तो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। कार से सारा सामान निकलवाकर हम्माद ने वहीं रखवा दिया। याद रहे, कल 11 बजे तुम्हें उधर होना है। हम्माद ने इसे याद दहानी कराई। दानिया जल्दी से बोला कि हम्माद भाई, मैं सुबह सवेरे ही पहुंच जाऊंगा। वो तुम्हारी मर्जी है कि कितना सवेरे आते हो।
और पुराने घर से कोशिश करना, कोई सामान साथ ना लाना, ज्यादा से ज्यादा नकदी, जेवर और जरूरत के कपड़े हैं। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खाने पकाने के बर्तन तक यहाँ मौजूद हैं। ठीक है भैया, दानियाल फर्माबरदारी से बोला। हम्माद बोला, आओ चलें, घर ड्रॉप कराऊं। घर की चाबियां हम्माद ने उसके हवाले करके चल पड़ा। घर में दाखिल होते ही दानियाल ने चारपाई पर बैठी माँ को गोद में लेकर नाचना शुरू कर दिया। ऐ लड़के, बावला तो नहीं हो गया? आयशा खातून ने घबरा कर पूछा। हाँ अम्मी जान, आज मैं सचमुच पागल हो गया हूँ और जब ये खबर सुनेंगी तो आप भी पागल हो जाएंगी। पागल हूँ मेरे दुश्मन, और अब नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दानियाल ने माँ को दोबारा चारपाई पर बिठाया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। आयशा खातून ने उसके बालों में उंगलियां फेरती हुए पूछा, अब बताओ मेरे लाल इतने खुश क्यों हो? अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन अम्मी जान। पता है कल तुम्हारा बेटा दूल्हा बनने वाला है। मगर कैसे? वो हैरान ही तो रह गई थी। दानी जल्दी बताना, मेरा सांस रुक जाएगा। उसकी माँ उसे भी ज्यादा उसकी शादी की मुतमन्नी थी। बस अम्मी जान कुछ न पूछो, जब अल्लाह पाक देता है ना तो छुपर फाड़ कर देता है। जवाबन दानियाल ने सारी तफसील उसके सामने दोहरा दी। अजीब कहानी सुना रहे हो बेटे, आखिर तुम ही क्यों? ऐसे रिश्ते के लिए तो अच्छे खासे अमीर लोग तैयार हो। आयशा खातून ने अंदेशा जाहिर किया। आखिर तुम ही क्यों, कहीं लड़की में कोई ऐब तो नहीं है? बस यही ऐब है कि मुतलका है। बेटा, ये तो कोई ऐब ना हुआ अम्मी जान। आजकल इसे ऐब ही समझा जाता है, और अगर इसके अलावा भी ऐब है तो कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं निबाह कर लूंगा। कम अज कम तुम्हारी दादी बनने की ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी ना। बेटे की बात पर वो सिपनों में खो गई। नन्हे नन्हे मासूम फरिश्ते उसे अपनी गोद में कलकारियां मारते दिखाई दिए। अच्छा अम्मी जान, उन्होंने एक दो शर्त भी रखी है। दानियाल ने माँ को सपनों की दुनिया से बाहर खींचा। कैसी शर्त बेटा? एक तो हमें ये घर छोड़कर दुल्हन के घर मुंतकिल होना पड़ेगा, और दूसरा इस शादी की इतला किसी को नहीं देंगे। कम अज कम 4-5 माह तक इस शादी को खुफिया रखना होगा। क्यों, इस घर को क्या है? कुछ नहीं अम्मी जान, ये हम किराए पर चढ़ा देंगे। यूं भी मुस्कान के अलावा इस घर में कोई नहीं।